بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب التحریض علی القتال، 33واں باب ہے التحریض علی القتال، قتال پر ابھارنے کے سلسلے میں. وقول اللہ حرض المؤمنین علی القتال، اور اللہ کا قول کہ مؤمنوں کو قتال پر آمدہ کیجئے، انہیں ابھاریے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما راى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقال مجيبين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا والنبي يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. باب من حبسه العذر عن الغزو، 35واں باب ہے. وبه قال حدثنا أبو أحمد وأبيه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنسا رضي الله عنه وعنهم أجمعين حدثهم قال رجعنا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول عندي أصح. تو یہ 35واں باب ہے کتاب الجہاد کا، اور اس میں پہلی روایت بیان کرتے ہیں احمد ابن یونس الیربوعی سے، وہ روایت کرتے ہیں زہیر ابن معاویہ الجعفی سے، وہ روایت کرتے ہیں حمید الطویل سے، اور وہ سیدنا خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان انسا حدثهم کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیان کیا قال رجعنا عن غزوة، نہیں ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں شریک ہو رہا ہے تو اسے غزوے میں شریک ہونے کا اجر دیا جائے گا. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت یہ اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے. تو مصنف نے صرف ایک جز بیان کرنے کے بعد دوسرا جز چھوڑ دیا اور کہا کہ آگے کی روایت کے ذریعے سے یا کتاب کے اگلے حصے کے ذریعے سے اسے سمجھا جا سکتا ہے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب، بعض کتابوں میں یہاں پر حا ہے، یہ تحویل سند ہے، اور بعض روایتوں میں حا مذکور نہیں ہے، دونوں طرح سے ہے، البتہ حا والی روایت یہ زیادہ مناسب ہے.
सुलेमान इब्न, बाज़ रिवायतों में हा मज़कूर नहीं है, दोनों तरह से है, अलबत्ता हा वाली रिवायत ही ज्यादा मुनासिब है। सुलेमान इब्न हर्ब से रिवायत करते हैं, सुलेमान इब्न हर्ब अल-वाशिही, वो फरमाते हैं कि हम्माद ने बयान किया। अब चूंकि हम्माद के नाम से बहुत सारे रावी है, इसलिए इमाम बुखारी ने हम्माद से मुराद यहाँ पर कौन है जिनसे सुलेमान इब्न हर्ब रिवायत करते हैं, तो फरमाते हैं कि हम्माद इब्न ज़ैद इब्न दिरहम अल-अज़दी अन हुमैदिन, वो रिवायत करते हैं हुमैद अत-तवील से, और वो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फी गज़ातिन फक़ाल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वे में थे और आपने इरशाद फरमाया, इन्न अक़वामम बिल मदीनति खल्फना, कि कुछ लोग मदीना में हमारे पीछे रह गए, मसलकना शिअबन वला वादियन इल्ला वहुम मअना फीही, हमने जो भी वादी तय की और जिस वादी से भी हम गुजरे मगर वो हमारे साथ बराबर के अज्र में शरीक है। हबसहुमुल उज़्रु, जिन लोगों को वाक़अतन उज़्र ने रोक रखा है। तो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी उज़्र की वजह से रुका है तो उसे मुकम्मल तौर पर जिहाद में शरीक होने वाले जितने कदम पर उन्हें सवाब मिलेगा उतना उन्हें भी सवाब मिलेगा, जो जंग में उनको सवाब मिलेगा, शरीक होने वालों को, माजूर लोग जो पीछे रह गए हैं और चाहते हुए भी नहीं आए उन लोगों को भी उतना ही अजर दिया जाएगा। ये इंसान के मोमिन होने का फायदा है, ये इंसान के मोमिन होने का फायदा है कि मोमिन होने से, इसीलिए कहते हैं कि इंसान अगर नेकियों का आदी होता है और वो मोमिन होता है और वो बीमारी या उज़्र की वजह से उस नेकी को नहीं कर पाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उसका अज्र उस हालत में भी अता फरमाते हैं। जैसे कोई रोजे का आदी है, जुमेरात और पीर के रोजे, कोई जमात के साथ नमाज का आदी है, तो इस तरीके से जो लोग भी जिस चीज के आदी है अगर किसी उज़्र की वजह से वो नहीं कर पाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से उसके मोमिन होने की वजह से महज उसकी नीयत और उसकी आदत की बुनियाद पर उसे मुकम्मल अज्र देते रहते हैं। बीमार हो गया, हर नमाज जमात के साथ तकबीर उला के साथ मस्जिद में पढ़ता था, वो मस्जिद में नहीं आ सका तो उसे पूरा पूरा सफ़े अव्वल में जो नमाज पढ़ता है वैसा ही अजर मिलता रहेगा अगर वो 8-10 दिन अस्पताल में रहा तब भी। तो इसलिए इंसान को अपने आप को अच्छी आदत का आदी बनाना चाहिए और बुरी आदतों से अपने आप को रोकना चाहिए। इस रिवायत से इस बात का आम सबक मिलता है। वक़ाल मूसा, और मूसा फरमाते हैं, मूसा से मुराद यहां पर कौन है? मूसा इब्न इस्माइल जो इमाम बुखारी के शेख है। तो इख्तिलाफ सनद को बयान कर रहे हैं कि ऊपर वाली सनद में जिससे सुलेमान इब्न हर्ब से रिवायत है उस सनद में हजरत अनस से रिवायत है बराह रास्त, और मूसा इब्न ही है। क्या मतलब? जिसमें हुमैद हजरत अनस से मूसा के वास्ते के बगैर बयान करते हैं वो ज्यादा सही है। अलबत्ता साहिब फतुल कदीर हाफिजुद दुनिया इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि ये दोनों के दोनों रिवायतें महफूज़ैनी सही रिवायतें, अगरचे मुसन्निफ को रिवायत ऊला में वास्ते के कम होने की वजह से उस रिवायत को मुसन्निफ ने पसंद किया, लेकिन क्योंकि हजरत अनस के बेटे ने भी अपने वालिद से इस रिवायत को बयान किया है, इसलिए रिवायत पर मतन और सनद के एतबार से सिवाय इसके कि एक वास्ते में कमी ज्यादती हो रही है सनद में और कोई फर्क पड़ता नहीं है। और हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं कि अब सवाल पैदा होता है कि हुमैद कभी हजरत अनस से बयान करते हैं, कभी उनके बेटे से बयान करते हैं, तो कहीं वो इरसाल से या तदलीस से तो काम नहीं ले रहे हैं। तो फरमाते हैं ऐसा नहीं है। हाफिज दुनिया फरमाते हैं कि मैंने तलाश किया कि क्या हुमैद अत-तवील का लिक़ा हजरत अनस से साबित है या नहीं, फवजदतु अन्नहु लक़िया, तो मैंने पाया कि उन्होंने उनसे मुलाकात की है। फिर मैंने तहकीक की, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हमने तहकीक की कि जब उनका लिक़ा मूसा इब्न अनस से साबित है
फसबत अन्नहु लक़ीयहु, तो पता चला कि उनसे भी उनका लिखा साबित है। तो कहा हो सकता है कभी उन्होंने जो डायरेक्ट उनसे सुना हो उससे रिवायत करते हो, और कभी उन्होंने उनके बेटे के हवाले से उसी को सुना हो उसे बयान करते हो। तो दोनों तरीके से हुमैद तवील बयान करते थे, कभी बराह रास्त हजरत अनस से, लिहाजा इरसाल या तदलीस इस किस्म का कोई इम्कान बाकी रहता नहीं है। बाबू फज़्ल सौम फी सबीलिल्लाह, ये बाब अल्लाह के रास्ते में रोजा रखने के बयान में। इससे कब्ल फित्र की फजीलत बयान की, अब रोजा रखने की फजीलत बयान कर रहे हैं। वबी क़ाल हद्दसना इसहाक़ इब्न नस्र क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल हद्दसना इब्न जुरैज क़ाल अख़बरनी यहया इब्न सईद व सुहैल इब्न अबी सालिह अन्नहुमा समिअ नुअमान इब्न अबी अय्याश अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम अजमईन क़ाल समिअतु अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन साम यौमन फी सबीलिल्लाहि बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारि 70 खरीफन। इमाम बुखारी अपने शेख इसहाक इब्न नज़र से बयान कर रहे हैं, इसहाक इब्न इब्राहिम इब्न नसर, अगरचे ये अपने दादा की तरफ इब्न इसहाक इब्न नसर से मशहूर है, मगर इनके वालिद का नाम इब्राहिम है, तो अपने दादा की तरफ मंसूब करते हुए मशहूर हो गए। इनको सादी भी कहा जाता है, इसलिए कि बनी साद में इन्होंने क़याम इख्तियार किया था, इस मुनासबत से इनको इसहाक इब्न नसर अस्सादी भी कहा जाता है। और हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़, वो रिवायत करते हैं अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हुमाम से, अन्ना अख़बरना इब्न जुरैज, वो बयान करते हैं कि अब्दुल मलिक इब्न अब्दुल अजीज इब्न जुरैज से ये मशहूर हो गए, मगर इनका नाम अब्दुल मलिक इब्न अब्दुल अजीज इब्न जुरैज है, अपने दादा की तरफ निस्बत से मशहूर हो ये भी। और अख़बरनी यहया इब्न सईद, वो कहते हैं कि हमें यहया इब्न सईद अल-अंसारी ने बयान किया, वो सुहैल इब्न अबी सालिह, और सुहैल इब्न अबी सालिह ने, उन दोनों ने नुअमान इब्न अबी अय्याश, इनका नाम ज़ैद इब्न सल्त है, और एक रिवायत में है ज़ैद इब्न नुअमान है। अलबत्ता यहां पर नुअमान इब्न अय्याश इसी तरीके से मनकूल है। अब ये तस्हीफ किसकी तरफ से है, तो फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने जैसा सुना वैसा जिक्र कर दिया, और बाज़ का कहना है कि हो सकता है नासिख से गलती हुई हो कि ज़ैद इब्न नुअमान लिखने के बजाय नुअमान इब्न अबी अय्याश लिख दिया, और बाद हजरात ने लिखा कि इनका नाम ज़ैद इब्न सलत, इनका नाम ज़ैद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन किस तरीके से यहां पर यह आया है तो कहा कि ये काबिल ताज्जुब है कि इनको नुअमान इब्न अय्याश क्यों रिवायत और सनद के अंदर में जिक्र कर दिया गया है, जबकि इनका नाम के सिलसिले में दो कौल है। राजिह कौल है इनका नाम ज़ैद इब्न सल्त है, और मरजूह कौल ये है कि इनका नाम ज़ैद इब्न नुअमान है। अन अबी सईद, वो रिवायत करते हैं अबू सईद से अल-खुदरी, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, इनका नाम साद इब्न मालिक है, मगर अपने कुनियत अबू सईद से ये खुदरी से मशहूर हो गए। और समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, वो फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मन साम फी सबीलिल्लाह, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में रोजा रखा, बअदल्लाहु वजहहु, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम से 70 खरीफ दूर कर देंगे। कितने खरीफ दूर कर देंगे? 70 खरीफ। खरीफ कहते हैं सनतुन, सनत के ऊपर इसका इतलाक होता है 70 खरीफन ऐ सनतन, इसलिए कि एक साल में एक खरीफ आता है। खरीफ असल में कहा जाता है पतझड़ के मौसम को, जिसमें दरख्तों से पत्ते गिर जाते हैं, उस मौसम को मौसम में खरीफ कहा जाता है, और वो साल में एक मरतबा आता है। तो इस वजह से ये कहा गया कि 70 खरीफ, तो उस खरीफ का इतलाक सना के ऊपर भी होता है। तो अब फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया कि उसे जहन्नम से 70 साल की दूरी के ऊपर, यानी जिसने अल्लाह के रास्ते में होते हुए रोजा रखा, कि वो जिहाद भी कर रहा है और रोजा भी रख रहा है, तो फरमाते हैं कि उसे इतना दूर कर दिया जाता है कि अगर कोई आदमी पैदल चले और उसको पैदल चलने में 70 साल लगे, इतना दूर उसे जहन्नम से कर दिया जाता है।
جب جہنم سے اتنا دور ہو گیا تو جنت سے قریب ہو گیا. جب جہنم سے اتنا دور ہو گیا تو جنت سے کیا ہو گیا؟ قریب. اسی لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں پر 70 بھی یہ احترازی طور پر نہیں، اتفاقی طور پر ہے، تکثیر کے طور پر ہے کہ اسے جہنم سے بہت دور کر دیا جاتا ہے. 70 محدود نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 کا عدد استعمال کرتے ہیں تکثیر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جہنم سے بہت زیادہ دور کرنا بتانا مقصود ہے. اب یہ فی سبیل اللہ میں مجاہد بھی آ جاتے ہیں، طالب علم اگر حقیقی معنی میں ہے تو طالب علم بھی آ جاتے ہیں، اور جو بھی اللہ کے راستے میں ہے وہ آتے ہیں. لیکن اولیت تو بہرحال جہاد کو ہے. اولیت تو بہرحال کس کو ہے؟ جہاد. سیدھا اٹھا کر کسی روایت کو جو جہاد کی باب ہے سیدھا اٹھا کر مدرسے کے طلبہ پر یا سیدھا اٹھا کر اس کو تبلیغی جماعت پر فٹ کرنا، یہ روایت کے ساتھ زیادتی ہے. جو جس باب میں روایت ہے اس کو پہلے اس پر محمول کیا جائے گا، اور پھر احتمالی طور پر کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علت مشترک ہے. وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اور اذا وجدت العلہ وجد الحکم، اس قاعدے کے تحت امکان ہے کہ ایسا تو امکانی طور پر کہا جا سکتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت سے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں رہتے ہوئے اگر آدمی جہاد کرے اور جہاد کے ساتھ دوسری کوئی عبادت یعنی روزے جیسی عبادت کو بھی شامل کر لے تو اس صورت میں اس کو اجر عظیم سے نوازا جاتا ہے. اور سب سے بڑا اجر اس کے لیے یہ ہے کہ اسے جہنم سے ورے کر جنت میں ڈال دیا جاوے.